Very short message that I want to share with you. एक छोटा संदेश मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक ऐसा संदेश है जो मुझे लगता है आप में से सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, सुपरिचित है। A message which I believe you all know it very well. Very familiar. आप बचपन से सुना हुआ होगा, ऐसे एक वचन आपके सामने बोलना चाहता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 25 We will go to Matthew 25. 14 to 30। पैसेज थोड़ा बड़ा है लेकिन पढ़ना पूरा पड़ेगा समझने के लिए। मैं चाहूँगा तीन पद कोई अलग-अलग लोग पढ़े। Matthew 25. 14 to 30, 30. 3 words each. Another students, not one student, 3 words. Anybody can read 3 words, then any other person can read 3 words. ऐसे 30 तक पढ़ेंगे. Yeah. Again, it will be like a man going on a journey. He called his servant and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the done with the 2 talents gained 2 more. But the man who had received the 1 talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received the 5 talents brought the other 5. Master, he said, you instructed me with 5 talents. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful to the few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with the 2 talents also came. Master, he said, you instructed me with 2 talents. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, you weak, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well, then you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I return, I will have received it back with interest. Take the talent from him and give it to the one who has the 10 talents. For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him, and throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and dancing of teeth. Praise God. आप में से कितने लोगों ने इस पैराबल को पहले सुना है? How many of you have heard about this parable earlier? थोड़ा अच्छे से हाथ उठाइए। Show your hands nicely. Praise God. Almost everyone. ठीक है। तो ये जो पैराबल है, जो दृष्टांत है, ये टैलेंट्स के ऊपर है, तोड़ों के ऊपर है, जिसको बोलते हैं तोड़ों का दृष्टांत। This parable is about the talents and it is known as the parable of talents. टैलेंट्स ऐसा समझ सकते हैं कि एक समय में जब यीशु मसीह के समय में, उस समय जब सिक्का वगैरह नहीं चलता था, उस समय रुपए करेंसी नोट नहीं थे, तब जो सोना या कुछ ऐसी चीजें हैं, उसका एक अनुपात होता था कि इतना कुछ सामान, जैसे मान लीजिए बोतल लेना है तो इतना सोना उनको देना पड़ेगा। तो एक मान लीजिए कुछ ज्यादा अनुपात में जब उसको कुछ सामान लिया जाता था, उसके लिए थोड़ा एक सोने का सिक्का समझ लीजिए, एक ऐसा सोने का सिक्का, एक टैलेंट दिया जाता था। So in the ancient days when there was no currencies, so at that time what they used to
when currency was not there, they used to Not do it currency. trade. Paper currency was not there. Paper currency was not there, so they used to do the trading or they used to give something like gold or something like that. तो उसमें से एक जो अनुपात है, एक सिक्का का जो तरीका था वो था टैलेंट, उसको तोड़े बोलते थे। So at that time, the currency was, you can say, the talents they used to use. तो आज के साथ अगर इसको हम जोड़े, अगर हम उस समय के जोड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज के जमाने में सोने तो ये मान के चलिए कि 100 रुपए का एक सिक्का टैलेंट को मान लेते हैं। हम लोग समझ लेते हैं कि 1 रुपए, चलो बिल्कुल सिंपल तरीके से 1 रुपए का जो सिक्का है वो आज का एक सिक्का उसके रूप में हम मान लेते हैं। यस। So let's take this talent as 1 rupees coin, 1 rupees. हाँ, 1 रुपये नहीं था उसका, वो तो हजारों रुपए के बराबर था। इसलिए मैं सिर्फ आपको समझने के लिए, कंफ्यूज मत होना 1 रुपए में क्या मिलेगा। 1 रुपए मान लीजिए हिसाब की किताब के बता रहे हैं, अगर समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए 100 रुपए का, चलो 100 रुपए पकड़ते ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। 100 रुपए का एक सिक्का इज इक्वल टू 1 टैलेंट। So we are just considering in the present situation, present days, how we will compare it. Don't say that this talent is 1 rupees or 100 rupees something. It is not clearly mentioned there. But at present, for our understanding, in the present scenario, what we are going to take it as a 1 rupees equals to 100 रुपये नोट कॉइन, हाँ 100 रुपये कॉइन। ओके, इतना मान लेते हैं सिंपल तरीके से। 100 रुपए का एक सिक्का इज इक्वल टू 1 टैलेंट, फॉर एग्जांपल ओनली। okay 100 rupees equal to 1 talent. तो एक जो मालिक था, स्वामी था, उसके कुछ नौकर थे घर में। So there was a master and he had some servants. तो मालिक को अब्रॉड में जाना पड़ा, यूएसए से कुछ उसको कुछ मीटिंग थी, उधर जाना था उसको, तो वो अपने मीटिंग में जाने वाला था। So master had some meeting in USA, so he had to go there. तो उसके घर में 3 नौकर थे, 3 काम करने वाले लोग। So he had 3 servants with him. और भी होंगे लेकिन शायद हमें उसके बारे में पता नहीं है। एग्जाम्पल 3 लोगों के बारे में बताया गया है। So maybe he is having many servants, but here where we know 3 people are mentioned. तो उनको उसने पास बुलाया, बोला कि मैं अब कल मुझे यूएस से जाना है, अर्जेंट मीटिंग है और यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। एक काम करो, मैं आप लोगों को कुछ पैसा देके जा रहा हूँ, उसको आप लोग उसको सही तरीके से डील करना और यहाँ का पूरा रखना, 1 हफ्ते के बाद वापस आ जाओगे। So he said, okay, I have an urgent meeting in USA, so I'm going, but there is some responsibility over here. I'm giving you these responsibilities, so do it very well. हो सकता है कि थोड़ा लेट भी हो जाए, 1 महीना भी हो सकता है। So he said maybe it will get delayed, even it will take 1 month time. तो उसने तीनों को पास बुलाया और वो तीनों को अच्छी तरह पहचानता था कि ये बंदा कैसा काम करना है, ये कैसे करता है और तीसरा कैसा काम करता है। तीनों को अच्छी तरह पहचानने वाला मालिक था। So the master called all the 3 servants towards him, and he knows very well all the 3 people. तो उसने क्या किया, पहले वाले को बुलाया, वो थोड़ा स्मार्ट था, एक्टिव था, बहुत काम करने वाला था। उसको 500 का सिक्का पकड़ा दिया, 100 के 5 पैसे सिक्के पकड़ा दिए। So he called one. He knows he is very talented, he is very active. So he gave him 500 rupees coin. दूसरे को देखा, वो उसको उतना तो नहीं है लेकिन बहुत मेहनती है, कुछ काम करता है, भाग दौड़ करता है, बहुत कुछ करता है। तो उसको 2 सिक्के पकड़ा दिए, 100 के 2 सिक्के पकड़ा दिए। So he knows the other one also. He is also talented. He is also takes efforts to work. So he gave him 200 rupees coin. तीसरा एक और है, वो कभी यहाँ बैठता है, कभी उधर जाता है, कुछ करता रहता है, लेकिन हमें मालूम है उसने मालिक ने बोला नहीं, करता तो है, कुछ तो करता है, ये ले 100 रुपए का अपने पास रख ले। So he called the third one also. He knows him also very well. He's not that active. So what he did, he gave him a 100 rupee coin. तो पहले वाले को 5, दूसरे वाले को, सेकंड को 2 और तीसरे को 1। So the first one he gave 5, and the next one he gave 2, and third one he gave 1. तो इसमें उनको कुछ नाराज होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि किसने दिया है, मालिक ने दिया। So they don't have to be feel bad because it was given by the master. Whatever is differentiation was there, it was given by the master.
और उस मास्टर ने उस स्वामी ने उनसे कुछ नहीं कहा करने के लिए, बोला रख लो अपने पास, यूज कर लेना और देखना क्या कर सकते हो, जरूरत पड़े तो इसको इस्तेमाल कर लेना। So master didn't give them a task to do it, but he said, you keep it with yourself and I will take care of it afterwards. और उसके बाद अगले दिन तैयार होकर एयरपोर्ट चले गए, वहां से सीधे यूएस से पहुंच गए। So next day he got ready and went to airport and he went to USA. अब पीछे यहाँ पे तीनों लोग बैठे हुए हैं अपने अपने जगह पर, तीनों अपने अपने जगह पर है, उनको हाथ में कितना है, टैलेंट आया हुआ है, सिक्के आया हुआ है। तो पहले वाले जिसको 500 रुपए मिले थे, यानी कि 5 टैलेंट मिले थे, वो एक तो इमीडिएटली यहाँ पे लिखा हमने पढ़ा है ना, इमीडिएटली उसने लिखा, एक बार देख लो उसको पढ़ना। हाँ 15 में पढ़िए। And 15 one who gave 5 talents to another 2 and the another 1 to each according to his own ability. एबिलिटी, देखिए खुद की एबिलिटी के हिसाब से स्वामी को पता था कि किसको कितना देना है, उसकी एबिलिटी से उसको दे दिया। हाँ। And immediately he went on a journey. हाँ। Then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. वो जो जिसको 5 तोड़े मिले थे, 5 सिक्के मिले थे, वो घर में बैठा नहीं रहा। उसने कहा मेरे हाथ में कुछ तो आया है, मैं इसको क्या करूँगा, कुछ ना कुछ तो मुझे इसमें करना है। वो क्या गया, वो बैठा था घर पे नहीं, वो निकला, बाहर निकला, अपने घर से निकला और जाकर लेन देन किया, यानी उसने बिजनेस किया, यानी उसने कुछ ना कुछ किया। So what happened? The master went on the journey and back at home, all the 3 people are there, but the person who got 5 talents, he said, my master meant I should do something with the talent that I have received it. उसने अपने पॉकेट में रखा कि हाँ 500 रुपए मिल गए, अब तो मैं जाके अपने लिए कुछ खेत खरीद लेता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, कुछ अपना ये कर, नहीं, उसने कहा मुझे इससे कुछ ना कुछ करना है, ताकि जब 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते का जब भी मालिक वापस आएंगे, हाँ मुझे उनको कुछ वापस करना है। So what he did, he didn't take that 5 talent and keep it in his pocket, but he said, no, when my master will come back, I need to do something. उसको अच्छी तरह मालूम था ये 500 रुपए मुझे मिला है, ये टैलेंट मुझे दिया गया है, ये मेरा नहीं है, ये मालिक का है और मुझे इसका हिस्सा मुझे वापस मालिक को देना है। So he was very much aware that the 500 rupees or this talent is given by my master. It is not of mine, but it is of my master. उसने तुरंत वो क्या हुआ, सुबह से तैयार होकर बाहर गया, कुछ खरीदा, उसने कुछ लेन देन किया, कुछ ने क्या किया मैं मालूम नहीं, लेकिन उसने कुछ ट्रेड किया, व्यापार किया, लेन देन किया और उसको उसमें बिजनेस में लगाया। So as this master went for the journey, what he didn't sit at his home thinking about it. He went outside, he went and did some trading, and he knows that his master will come back. I need to give him more. दूसरा एक व्यक्ति जो सेकंड व्यक्ति था, वो भी वहां अपने घर में था, सुबह उठा, उसने कहा अरे मेरे मास्टर ने कितना 2 टैलेंट दिया है, हाँ उसने उसको 5 दिया और मुझे सिर्फ 2 दिया, कैसा ऐसा कुछ नहीं। उसने भी क्या किया, वो टैलेंट जो था, उसने कहा मास्टर जब वापस आएंगे, जब वो स्वामी वापस आएंगे, मुझे उनको कुछ उनके हाथ में एक्स्ट्रा देना है। वो भी अपने तैयार होकर घर से निकल गए। And the second one also didn't start grudging. He didn't say, "Oh, my master gave him 5 talent. He gave me only 2." He didn't start doing the complaints. But what he did, he said, "Yes, I got 2 talents. I should go and do something of it so that I can make it of a good use." सुबह निकल गया, वो बाजार में निकला, खेत में निकला, कहाँ गया, कहीं तो उसने भी व्यापार किया और उसने सोचा कि इसको मुझे 2 से कुछ ज्यादा कर देना है। जब स्वामी वापस आएंगे और सिर्फ उसको ऐसे ही नहीं दूंगा वापस, मुझे कुछ को देना है ताकि वो मेरा स्वामी मुझे उससे प्रसन्न हो। So he went outside. He went for trading. We don't know where he went or what he did, but he went and he did some trading so that he had something in his heart. When my master will come back, I need to give him something more. हाँ, एक तीसरा व्यक्ति भी वहाँ पर सुबह उठा, थोड़ा लेट उठा, वो आराम से उठा। तीसरा व्यक्ति देख। And the third person was also there. Maybe he wake up little late. और रात भर सोचता रहा मेरा स्वामी कैसा है, वो उसको 5 दे दिया, उसको 2 दे दिए और मुझे पता नहीं क्या एक पकड़ा रखा, इसका मैं क्या करूँगा। और सोचता बहुत देर हो गया, सोते बहुत लेट हो गया और सुबह उठा भी बहुत लेट। So the third person in the night he was thinking, how my master is. He gave 3 to the other one
से कम एक तो है, इसको मैं कहीं लेके गया, कहीं गिर गया, कहीं चोरी हो गई, या किसी ने मुझे छीन लिया, या कहीं मुझे घाटा हो गया तो जो मिला है वो भी नहीं रहेगा, और मैं क्या जवाब दूंगा अपने मास्टर को? So he thought, oh, anyway, I have received one. If it will be stolen, or if someone will take, or if it will fell down somewhere, I will lose this one also. I should do something for this one. तो वो बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा मैं काम करता हूँ, हाँ मैं जाकर अपने घर के पीछे वो थोड़ी सी जमीन है मेरे पास, उसमें गड्ढा खोद के उसको मैं छुपा देता हूँ। So he said, yeah, I should do something. And what he did, he went beside his home and dig a hole, and he kept inside that. हाँ बहुत बुद्धिमानी का काम किया, पता नहीं उसको बाद में मालूम पड़ा वो 5 वाला वो जो जिसको मिला था वो गया वो ट्रेडिंग करने के लिए, और दो वाला भी निकल गया। अरे कैसे हो गया, क्या कर रहे हैं? मुझे देखो आराम से गड्ढे से, कोई चोर भी चोरी नहीं करेगा, छुपा के संभाल के काट दिया, खेत के गड्ढे में छुपा के रख दिया। So he thought of himself as a very smart person. He said, oh, that person will find he went somewhere. The person who got through, he also went somewhere. But I will keep it safe inside. He dig and he put the coin inside that hole. और फिर वो छुपा के मेहनत करके छुपा दी, उसके बाद घर जाके आराम से बैठ के टीवी ऑन करके देखने लगा, क्या मूवी चल रही है। And after that, after digging and hiding it, he came back at home and switched on his TV and said, oh wow, what a wonderful scene, so let me enjoy this. हाँ 2020 चल रहा है, IPL चल रहा है भाई, वो सब छोड़ा नहीं उसने, 20 दिन के लिए उसका पूरा बना हुआ है, मुझे आज ये देखना वो देखना, 20 मिनट राउंड सब मार के आऊंगा मैं, लेकिन बाकी टाइम में मुझे अपना IPL और 2020 और टेस्ट में जो भी है सब देखना। So what he said, I have hidden it very safely, so I will enjoy my time. He was watching 2020, he was watching IPL, he was watching something else, he was enjoying his time. Sometime he will go outside and come back, but he said, mine is safe. आप सब सोच रहे हो उस समय टीवी और IPL कहाँ होता है, मैं सिर्फ कल्पना बता रहा हूँ, आज के समय में आप उसको कौन रेट कर पाए, इसलिए। So you might be thinking in those days where the IPL and TV was there, nothing was there. I'm just sharing so that you can consider the present time. एक दिन निकल गया, एक हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ते निकल गया, ये आराम से बैठ के अपना मैच वगैरह देख रहा है, थोड़ा खेत वगैरह में जाके देखता है, थोड़ा हाँ देख लेता है, कहीं उनकी देख लेता है, सब भेड़ बकरियां सब ठीक है, आलू प्याज सब ठीक है, हाँ भाई सब काम सही चल रहा है, वो अपने आप के देख रहे हैं, और वो बोलते हैं दूसरे लोग कहाँ गए, पता नहीं 2-3 हफ्ते से नजर ही नहीं आ रहे, कहीं गए हो, पता नहीं कहाँ जाते हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, रात को आते हैं, लेट जाते हैं, कहाँ है वो लोग, क्या करना है? मुझे बुद्धिमान को देखो कितना आराम से संभाल कर रखा है, हमें उसको कोई चुरा नहीं सकता। So he said one day passed, maybe 1 week passed, and like that days were going, he thought, where are the other 2 persons? They are going always outside, I don't know what they are doing. But he was happy that he has kept everything safe. 1 महीने के बाद वहां से कॉल आता है, किसका? हाँ स्वामी का कॉल आया यूएसए से कि भाई कल पहुंच रहा हूँ मैं, ठीक है सब तैयार रहना, मैं कल पहुंच रहा, सब लोग सुबह अपने अकाउंट और जो भी है मुझे देना वापस, मैं कल सुबह पहुंच रहा हूँ। So after maybe 1 month, like the master called and said, oh, tomorrow morning I'm going to come, so keep everything ready, I'm going to come. और सुबह वो आ गए, स्वामी लोग के एयरपोर्ट से लेकर रिसीव करके तीनों गए, पहुंच गए, रिसीव करके आइए सर, एक ने बैग ले लिया, एक ने वो बुके दिया, एक ने वेलकम किया, घर पे लेकर आगे खुशी से, हाँ आइए। So all the 3 went and brought the master from the airport, and one person gave bouquet, one person took his briefcase, or they were एक ड्राइविंग भी किया सब, जो भी one सब person करके was लेके आए, driving and they took care of him. बहुत प्यार से लेकर घर पे लेकर आए, और उन्हें मास्टर बोले एक काम करते हैं 9 बजे 10 बजे आप लोग सब आना, मुझे थोड़ा सा बात करनी है आप लोगों से। So after reaching back home, so the master might have said, okay, we will meet at 10 o'clock, so be ready everyone. हाँ तो हो गया ब्रेकफास्ट सब करके, तो रेस्ट हो जाकर 10 बजे सब लोग पहुंच गए ऑफिस में उनके। So after breakfast, maybe everyone reached in the office at 10 a.m. हाँ टाइम के बड़े पंक्चुअल थे, तीनों टाइम पे पहुंच गए। आज भी वो जल्दी उठ गया, आज बंदा उसके अंदर था क्या थोड़ा जल्दी जाना है, मुझे मास्टर को दिखाना है, जो दिया था और सब है, बड़ा खुशी से उठ गया, जल्दी उठ के 10 बजे सब लोग पहुंच गए। So everyone were very punctual and they all came at 10 o'clock, and this person was also, as he's very smart, he said, yes, my master is there, so today I have to be on time, and he was there at 10 a.m. हाँ सबसे पहले एक से जिसको 5 सिक्के दिए थे, तोड़े दिए, टैलेंट्स दिए थे,
उससे, क्योंकि जिससे ज्यादा दिया जाता है उससे सबसे पहले पूछा जाता है। So the master called the first person whom he gave 5 talents because like to those who have more responsibilities given, first we ask to them only. तो उसने पहले बुलाया, भाई आ जाओ। हाँ, मैंने तुम्हें कितना दिया था? उसने बोला 5 टैलेंट। हाँ, तो क्या किया उसका तुमने? तो उसने कहा ये रहा आपका 5 और ये 5 मिले और साथ में कमा लिए। जब से आप गए हो मैं गया ट्रेड करता था, ये किया वो किया और इसको और भी थोड़े कमा लिए, 5 और मैंने कमा लिए। The first person who got 5 talents, he said, Master asked, where is what you did with your 5 talents? He said, yes, Master, every day I used to go outside, I took so much effort and I have earned another 5 talents now. ओह, मास्टर बड़ा खुश हुआ। उसने बोला मैंने तो कुछ बोला नहीं था, उसके बाद भी जाके व्यापार किया, बिजनेस किया और 5 और कमाए। उसको बोला ओह यू फेथफुल, वेल डन फेथफुल सर्वेंट। So the master was so happy. He said, oh, you took so much effort and you are a faithful servant. Well done, keep it up. और वहाँ थोड़ा जमीन है, वो मैं तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ। So what I'm going to do, that land is, I have some extra land, so I'm going to give you that land too. दूसरा भी आ गया, दूसरे से पूछा, हाँ भैया तुम्हारा क्या हाल है, क्या किया तुमने 1 महीना? So he called the next one also and he said, okay, what you did with your talents that I gave you? उसने कहा हुजूर, हिंदी में हुजूर स्वामी, आपने मुझे 2 टैलेंट 200 का सिक्का दिया था, मैंने 400 कमा लिए, मैंने 2 और कमा लिए। उसने खुशी से बोला। So next person said, okay master, here I am and you gave me 2 talents, 200 rupees and I have earned 400 rupees now. वाह, मैं उतना तो नहीं कर पाया जितना उसने किया है, लेकिन आपने जितना दिया उसका डबल कर दिया। यानी उतना मैं कर सकता था पूरे 1 महीना, जितना एफर्ट ले सकता था करके मैंने डबल कर दिया, जो आपने दिया उसको डबल कर दिया। I was not able to earn as the first one, but whatever you gave me, I tried my best to double it and I have took lot of effort and did this. बोला वो उससे खुश हो गया, बोला वेरी गुड, वेल डन फेथफुल सर्वेंट। उसको एक काम कर, वहाँ उन्हें जमीन इसको जितने दिए उसकी जमीन उसके पास एक थोड़ी और जमीन है, वो तुम्हारे नाम पे कर दे। So the master said, well then servant, you have also earned double and so I have some more land over there and I'm going to give you that one. देखिए कोई डिफरेंशिएट नहीं किया मास्टर ने, दोनों को बराबर दिया, थोड़े अलग-अलग दिए थे लेकिन रिवॉर्ड दोनों को बराबर मिला। So if you see here, the talent master gave was to different talents, but when the reward they got almost same. दोनों के 1-1 एकड़ जमीन मिल गई, 1 एकड़ एक को, 1 एकड़ दूसरे को। And the reward they got is 1 acre land for one person, the other person also got 1 acre. वो तीसरा बंदा अपना खड़ा था उधर, बुद्धिमान वाइस मैन, अपने आप में नजर में बढ़ती हुई बोल रहा था, बड़ा खुश हुआ, अरे ये क्या किया, मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया। तो अपने जो मास्टर थे, जो स्वामी है, उसको बोला हाँ भाई आजा, आपका क्या हुआ, आपने क्या किया? So the third person also, master called the third person also, and he knows he's a wise person because he has kept it very safely, so he knows it everything. So the master asked, what you have done with the talent that I gave you? उसने कहा मैं तो सर आपको अच्छे से जानता हूँ, आपका स्वभाव जानता हूँ मैं कैसे हो आप। He said, master, I know you very well and I know how you are. आप पढ़ना, बड़ा बुद्धिमान था, बोला आपका स्वभाव जानता हूँ, आप तो जहाँ बोलते नहीं हो वहाँ से काटने वाले व्यक्ति हो। So he said, I know your nature. Wherever normally your nature is like where we don't sow, you like to cut from that place. और फिर मेरे हाथ से गिर जाता, चोरी हो जाती तो मुझे छोड़ते फिर तो बुला देते आपके पास। And by mistake, and if I lose this talent, so you will, fire me from here. तो स्वामी ने पूछा तो क्या किया आपने, क्या किया उसको? So the masters asked, okay, what you did? Tell me. बोला मैंने क्या किया, आपको जो तोड़े हैं, जो आपने मुझे टैलेंट दिया था, उसको संभाल के मेरे घर के एक जगह पर तुमको भी नहीं बताया मैंने, वहाँ पे गड्ढा करके खोद के रख दिया अच्छी तरह संभाल के, उसको मैं सुबह भी लेकर आया हूँ, देखिए बिल्कुल ताजा ताजा जैसा आपने दिया वैसे का वैसे ही एक। So he told to the master, said, see, I have not done like them. Whatever they have done, I don't know. But I have done it so safely, and this morning I have taken it back and brought it in your presence. बिल्कुल जैसा आपने दिया था वैसा का वैसे ही, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए, कहीं
छुपा के रखा, अब देखिए आपने जैसे दिया वैसे के वैसे मैं आपको दे रहा हूँ, वाह मुझे उसको सपना देख रहा है कहकर उसमें मिलने वाला है। And master, he said, see master, whatever you give me, how the condition, see, it's like that, intact. I have not done anything with it. I have brought it safely back to you. And he was thinking he will get some acre. उसको लगा कि जो स्वामी है मास्टर बड़ा खुश हो जाएगा और उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन स्वामी ने क्या कहा? हम पढ़ते हैं 26 में, you wicked and lazy servant. So here he was expecting that the master will be so happy with him because he got it in that bag. So, but we will read in 26 verse. But his Lord answered and said to him, "You wicked and lazy servant." हाँ उसको क्या बुलाया? Lazy, बुद्धिमान नहीं बुलाया, सोचा मुझे 22 सर्वेंट बुलाएंगे कि मैंने संभाल के रखा है, उसको बुलाया आलसी दास। So he was thinking what he was expecting was his master will call him voice servant, but here we read it, what he called lazy servant. हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह ने एक पैराबल कहा है, लेकिन ये हमारे जीवन में आज भी लागू होता है। और सीरियसली इसको सोचना है, मैंने बहुत ही मजाक के तरीके से, हंसने के तरीके से मैंने बताया, लेकिन इसको बहुत डिटेल में और गंभीरता के साथ लेने का एक दृष्टांत है। So it's a parable, quoted in the Bible, but this is very serious thing. I told you in a very fun way, but this is really applicable in today in our lives too. यहाँ पे जो स्वामी है वो कौन है? परमेश्वर। Here the master, who is the master over here? Is God, Abba Father. और ये जो स्टूवर्ड है यहाँ पे, यानी कि जो सर्वेंट्स है वो कौन है? हम लोग, हम सभी। And the servants, who are the servants? We. हम लोग सब है। परमेश्वर ने किसी को खाली नहीं छोड़ा। परमेश्वर तीनों को बुलाया, तीनों को उनके एबिलिटी के हिसाब से कौन कितना कर सकता है उसके हिसाब से उनको टैलेंट्स दिए। So God gave talents to everyone and He called everyone. He didn't leave some people like you. He didn't leave. He gave it to 3 people, and we see He called all 3 people. Likewise today also He will ask each of us. परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर ने हमें दिया भी है। ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। God made us in His shape, and God made us in His nature, and then God chosen us, and then He also gave us some talents. So He created us, He has chosen us, and He has also given us something to bring. Yes, उन्हें हमें बनाया, उन्हें हमें चुना, और उन्हें हमें कुछ दिया भी है कि हम व्यापार करें। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कुछ नहीं मिला है, सबको कुछ ना कुछ कम से कम एक तो मिला ही है। ज्यादा हो सकता है तो 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, वो प्रभु के अनुग्रह के अनुसार, लेकिन कम से कम मिनिमम एक तो सबको कुछ ना कुछ टैलेंट प्रभु की ओर से दिया गया है, एक्स्ट्रा टैलेंट। In this world, there is no one who can say, "I didn't get anything from God," but God has given a talent, some talents to everyone. Whether it is 3, whether it is 5, whether it is 1, He has given some talents. तो परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो परमेश्वर जानते हैं हमारी एबिलिटी क्या है, और He entrusts us according to our ability. So God has made us, and He knows what we can do, what is our ability, how we will deal with the situation. So He gives us, He entrusts things on us according to our ability. तो हमें दूसरों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हमें ये देखना परमेश्वर ने मुझे कितना दिया है, क्या दिया है। So we don't have to compare with others what they have received in or what God has given to them, but we have to check and see what God has given to us. अब जिसको 2 मिला था, उसने अगर कंपेयर किया होता कि उसको ज्यादा मिला है, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो इसको भी क्या मिलता? टाइटल आलसी। क्या मिलता? आलसी बोला जाता उसको भी। If the person who got 2 talents, if he would have compared with the other one and would have done nothing, so what God would have called him, the master would have called him lazy. तो अगर हमारे पास कुछ भी है, even if we are faithful little, God will promote it for much. और अगर हम विश्वास योग्य है, छोटे से छोटे में या कम से कम में अगर विश्वास योग्य है, तो प्रभु हमें बड़ा सा बड़ा देने के लिए तैयार
इसे याद रखना। वचन में नाम पढ़ते हैं जेनेसिस में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? यूसुफ। So in Genesis we can see Joseph. उसके पास ज्यादा कुछ टैलेंट नहीं था, उसके पास एक टैलेंट था। टैलेंट का मतलब परमेश्वर से दिया गया एक स्पेशल गिफ्ट। So we know Joseph had not lot of talents, but he had something special that was given by God. देखिए एबिलिटी और टैलेंट में फर्क है, आप समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है? कई लोगों के अंदर एबिलिटीज, दुनिया वालों में बहुत एबिलिटीज होंगे, टैलेंट मतलब परमेश्वर की ओर से दिया गया कुछ गिफ्ट, एक्स्ट्रा गिफ्ट। So there is difference between ability and talent. Like in world you will see so many people are able, they have so much ability, but talent is given by God. गिफ्ट ऑफ गॉड, Gift of God. स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ठीक है, दिया गया। तो यूसुफ को क्या टैलेंट था? जोसेफ का क्या टैलेंट था? जोसेफ भाई बताइए, मेरे जोसेफ ब्रदर, our Joseph brother? Yeah. What was Joseph's, like biblical Joseph's talent? Yeah, you believe Joseph? Go ahead. Yeah. Faithful. Huh? He was faithful. Faith, talent. What was the talent? Extra skill, what extra gift? Anyone? Okay, anybody else? Huh? Visionary. Okay, anybody? Be specific. You are near to the answer. Listen. Interpretation of the dreams, right? ये सपना, जो सपना देखते हैं उसकी सही से व्याख्या कर सकते थे। So he was an interpreter. Interpreter. Yes, of dreams. Interpreter of dreams. Yeah. Not preaching interpreter. Dreams. ये भी एक skill है। ये जो interpretation चल रहा है, that is also a skill, right? So that was interpretation of dreams. तो जोसेफ का सबसे मेन जो था स्किल वो था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। कोई भी सपना देख ले, उसको सिर्फ सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं, सब लोग सपना देखते हैं, हम भी सपना देखते हैं, लेकिन उस सपने का अनुवाद क्या है, व्याख्या क्या है, उसका अर्थ मतलब बताना, ये परमेश्वर की ओर से एक स्किल था यूसुफ को। So Joseph was gifted from God a skill of interpretation of dreams. और वो क्या हुआ, उसने उसको इस्तेमाल किया। जब वो बिल्कुल जेल में था, वहां पर भी जब उसको जरूरत पड़ी, उसने क्या किया, उस स्किल को यूज किया। So when he was in jail also, then also he used that skill. याद है आपको? Do you remember? बेकर और दूसरा कौन था? Come on, Drinker. students. Say. बेकर है, कप बेयर है, राइट? ड्रिंकर नहीं है, तो कई लोग बोलते ड्रिंकर, बेकर है, ड्रिंकर। कप बेयर मतलब पकाने वाला और पिलाने वाला, ठीक है? ये दोनों जब जेल में थे, उन्होंने सपना देखा, वो बड़े अपसेट हो गए कि इसका क्या मतलब है। जोसेफ ने क्या किया, परमेश्वर उनका उस सपने का अर्थ बता दिया और वैसे के वैसे ही हुआ। So what did Joseph do there? He interpreted the dream that they saw, and that is what his talent God gave him. और उसकी वजह से कहाँ पहुंच गया, उसने उसको यूज किया उधर। उसकी वजह से जब राजा ने कोई सपना देखा, वहां से फ्रॉम प्रिजन टू पैलेस, वो स्किल उसको कहाँ ले गया, फ्रॉम प्रिजन टू पैलेस में उसको पहुंचा दिया, राजा का सपना का अर्थ बता दिया, और वो वहां का प्राइम मिनिस्टर बन गया। And we know in jail when he interpreted that, he used his skill. That is what God helped him from prison to go to palace. He was faithful in the little gift he had. So उसको परमेश्वर ने जो टैलेंट दिया था, जो परमेश्वर ने उसको तोहफा दिया था, उसको उसने यूज किया। उसने ये नहीं कहा कि मेरे भाइयों ने मुझे इतना कर दिया, मैं जेल में हूँ, मुझे गलत आरोप लगा दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, ऐसे बोलते तो कहाँ, वही रहता, जेल में रहता। So he was not complaining, my brothers did like this with me, what God is doing in my life. He was not complaining, but he was in the jail also. He was looking forward and doing God's will. जैसे उसको मौका मिला, उसने ट्रेड किया, उस अपने जो टैलेंट है उसको उसने ट्रेड में लाया, बिजनेस किया, और उसने कहाँ पहुंच गया, महल में। And as he got opportunity, he traded his skill that God gave him, and that helped him to go from the prison to palace. और सेकंड जो हम पढ़ते हैं, जो फेथफुलनेस है लीड्स टू इंक्रीज। क्या है? फेथफुलनेस लीड्स टू इंक्रीज। जो विश्वास योग्यता है हमें बहुतायत की ओर लेके जाता है। अगर विश्वास योग्य है कि कोई छोटे बातों में, तो परमेश्वर
हमें जिम्मेदारी देते हैं। So if we will be faithful in small things, God will help us and He will take us to increase. डेविड के बारे में हम जानते हैं, यहाँ पर हमारे भाई डेविड भी है ना, डेविड जी, हाँ, डेविड का स्किल टैलेंट क्या था आप बता सकते हैं? David, एक और एक दो चीज देख के उदाहरण याद रहता है, जब प्रचार जब करते हैं कुछ हम कैरेक्टर को भी उसके साथ जोड़ देते याद रहता है सुनने के बाद। डेविड का क्या था सबसे अच्छा स्किल उसका, डेविड का हंटर। what was David's skill? Bible David, not this. क्रिकेटर फिर उसका वर्शिपर क्या था? वर्शिपर। वो जहां पर भी रहा, हाँ जंगल में था, उसने ये नहीं कहा कि यार बाकी सब उधर उधर में जंगल में, उसने जहां पर भी था अनॉइंटेड वो था, वर्शिप लीड करने का परमेश्वर उसको स्किल दिया था। जंगल में बैठकर उसने कई गाने लिखे, कई गाने बनाए, कई इंस्ट्रूमेंट्स किए, परमेश्वर उसको जो टैलेंट दिया था और वो became man of worship. So we know what David, not this David, Bible David had a talent. So what God gave him talent? He was a good worshipper. So when he was in the wilderness, when he was in the desert also, wherever he was using the talent that God gave him. He was worshiping God. जब वो जंगल में उसने उसको यूज किया अपने वर्शिप स्किल को, तब क्या हुआ? एक बार कहाँ महल में शाऊल के ऊपर दुष्टात्मा आ गई, उसको कोई निकाल नहीं पा रहा था। किसी ने बोला वो जो लड़का है ना, वो जो कहाँ पे जंगल में, वो अच्छा वर्शिप करता है, अगर वो वर्शिप करेगा, अगर आराधना करेगा या वो वीणा बजाएगा तो क्या हो जाएगा? इंस्ट्रूमेंट बजाएगा, इसलिए इंस्ट्रूमेंट बहुत अनोइंटिंग है, आपको बहुत अच्छी तरह बजाना, ये सब बजाने से दुष्टात्मा निकल जाएगी। और ऐसा ही हुआ, हो गया, बजाया, शाऊल चंगा हो गया और वो महल में आ गया। अब ये कहाँ पहुंच गया? फ्रॉम जंगल, फ्रॉम फॉरेस्ट टू पैलेस। Or we know now, like David had the talent of worshiping. So what was he was doing in the wilderness also? He was worshiping Lord with the gift of harp. He was playing there. And once what happened? Saul was affected by the evil devil spirit. So suddenly someone said, "Oh yeah, there is a boy who is in the desert who he plays, harp and he will worship his Lord, and this devil will be." He will get deliverance from this evil spirit. So what happened? He got the opportunity to worship the Lord from the desert. He was taken to the palace to worship the Lord there. आप लोग सबको समझ में आ रहे हैं बातें? Hope you are understanding, you are getting this. It's good. Hallelujah. अब आप सोच रहे हैं कि सिर्फ भाइयों के बारे में, बहनों के बारे में कुछ नहीं क्या बाइबल में? बहनों को कुछ नहीं दिया क्या परमेश्वर ने? So now you all will be thinking, oh, what is this? Bible is only with the brothers or what? What about the sisters? या एस्तर नाम की कोई है क्या? Yeah. कोई नहीं। We have only one sister now here. ठीक है। एस्तर के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसको कौन सा गिफ्ट दिया था एस्तर को? एस्तर को कौन सा गिफ्ट दिया परमेश्वर? What was the gift Esther was having? हैं? ब्यूटी। ओके, वो तो स्वाभाविक है। Any other special skill from God? या एक, she was very courageous. Say. हाँ। She's saying something. Yeah, courageous. Okay, अभी टाइम की जल्दी निकल रहा हूँ, टाइम हो गया। Yes, good. Okay. So जल्दी भागेंगे। we know Esther was very courageous. उसने जब राजा के सामने आने को बोला, उसने अपनी पहचान को छुपा के रखी, छोटी बात नहीं है। वहां पर भी वो छुप के रही, लेकिन जब जरूरत पड़ी, जब उसके सामने एक ऐसे यहूदी को हम नष्ट करने जा रहे हैं, तो अपने जीवन की भी उसने वो नहीं किया, परवाह नहीं की, और उसने करेजियसली सबको बोला कि प्रार्थना करो, मैं राजा से बात करने जा रही हूँ। और उस करेज की वजह से यहूदी लोग जितने थे वो बच गए, और वो भी प्रभु ने उसको उठाया। So we know about Esther. Esther was having the talent of courageousness. So what happened when she was using it in her personal life, but when she had to face the king also, she was courageous there. She used it with gracefully. She used that courage, and we know how God blessed her and God gave her strength to stand in front of the king also. तो देखते हैं कि जिनको थोड़ा सा मिले, एक या दो भी मिले हैं, उन्होंने उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने प्रमोट किया और बहुतायत से दिया और अधिक उनको आशीष दी। And in the Bible, from the Bible, we can learn that God gives some talents to some people, but whatever it is, 1, 2, 3, whatever talent God gave them, God helped them, and they used it for God's glory. Amen. Praise God.
लेकिन कुछ एक उदाहरण ऐसे भी है जहां परमेश्वर को दिया लेकिन उन्हें कुछ ट्रेन नहीं किया, डर गए, जिसकी वजह से उनके पास जो था वो भी छीन लिया गया। But in the Bible also, we can see, in the Bible we see there were some people, they got their talent, but they were fearful and they didn't use their talents. अभी हमने जो दृष्टांत में पढ़ा था, जो तीसरा व्यक्ति था जिसने कुछ नहीं किया, आलसी था, उसको क्या किया, उसको जमीन दी नहीं, उसके बाद जो था वो भी छीन लिया और उसको कहां डाल दिया, सजा जेल में डाल दिया उसको। So we know as today we learned from the parable what happened to the third person. Whatever he had, it was taken from him and he was put into the prison. और यहाँ पर हम देखते हैं एक उदाहरण, कुछ बहुत सारे उदाहरण है, एक अच्छा उदाहरण जो हमारे मन में आता है वो ये है कि जो इस्राएली लोग थे, जब यरीहो में उनको परमेश्वर ने कहा जाके युद्ध करो, उनको जीत लो, अपने कब्जे में कर लो, तब क्या बोला, भले मूसा ने क्या किया, मोसेस ने कुछ 12 लोगों को, हर गोत्र में से 12 लोगों को चुन लिया। So we know when we say about the third person also, there's an example for that in the Bible also. Yeah, Moses selected 12 people from every tribe as spies to doing a spy the city of Jericho. A stronghold was that. तो हम देखते हैं कि मूसा ने 12 लोगों को चुना जो कि एक किसी भेड़िए की तरह इस्तेमाल किए थे। भेड़िए नहीं है, भेद लेने वाले जासूस की तरह जासूसी करने के लिए उधर भेज दिया। और उसके बाद क्या हुआ, वापस आए मूसा के पास और ये उस 12 में से 10 लोगों ने क्या कहा, आपने पढ़ा होगा, आप लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह, बाइबल वाले स्टूडेंट्स हैं, उसको बाइबल में से पढ़ना। उन लोगों ने कहा हम यरीहो के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, वहां के लोग बहुत ताकतवर है, हम डर गए, हम कुछ नहीं कर सकते। From the 12 these spies, what happened? 10 people came back and they said, these people are very giant, very big people, and we can't face them, we can't fight with them. उनके पास क्या था, परमेश्वर का प्रॉमिस था, वायदा था, वो टैलेंट है, परमेश्वर एक टैलेंट परमेश्वर को दिया, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम जाओ और जाओ। लेकिन उस प्रॉमिस के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया और डर गए, जिसकी वजह से वो लोग कहां नहीं पहुंच पाए, कनान देश में नहीं पहुंच पाए। Even they know that the talent, the God's promise was with him, but still when they went, they got feared and they were not able to use their talent, and they came back with a negative report, and because of that, God didn't allow them to enter Canaan. यहाँ लिखा है ना, पहले उस व्यक्ति ने क्या कहा, जिसके पास एक मिला तो उसने कहा I was afraid to trade, afraid to do the business, I was fearful. क्योंकि हमने इधर देखा कि उस व्यक्ति ने जो जिसको एक सिक्का मिला था, उसने क्या कहा, उसने कहा मेरे अंदर डर था, मैं डर के मारे नहीं कर पाया। अगर हमारे अंदर डर है, शक है, तो हम एक्शन नहीं लेंगे। So if we have fear, if we are not, if we have doubt, what we will have, we will not able to take a good action. और कोई एक्शन नहीं लेंगे तो कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। And if we will not able to take any action, then we will be not rewarded. We will not get any benefit from out of it. लेकिन अगर हमारे अंदर विश्वास है, फेथ है, we will take action and we will be rewarded. But if we have faith and if we will take some action, then God will surely bless you and God will give you the reward. Praise the Lord. तो हमें परमेश्वर ने इसलिए बोला फेथफुल बनने के लिए बुलाया है। So God has called us to be faithful. हमें एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं बोला। परमेश्वर ने ये नहीं बोला वेल डन यू एक्सपर्ट सर्वेंट, नहीं, हम भले ही एक्सपर्ट ना हो, कोई बात नहीं, जो चीज आता है करे ना करे, लेकिन हमें क्या रहना है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, we have to be faithful. So God is not telling you to be experts in anything, but God wants to see you as faithful servant. अच्छा है, अगर एक्सपर्ट बन सकते हैं किसी चीज में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फेथफुलनेस है जो परमेश्वर में देखते हैं। Yeah, if God is giving you and helping you to be experts in something, that is well and good. But God wants to see faithfulness in your life. इसलिए अपने आप को हम जानते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर ने क्या तोड़े दिए। कोई नहीं कह सकते कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ है, उसको ढूंढें, उसको समझें और उसको परमेश्वर के राज्य के लिए लगाएं। तब परमेश्वर की ओर से हमें कौन सी उपाधि मिलेगी? Well done, faithful servant. So let's look unto us, let's look and let's see what all talents God has given us, because there is nothing that God has not, no person in this world can say, I have no talents.
बहुतायत से आपको आशीष प्रदान करेंगे। और आप जब यहाँ से घर में जाते हैं, इस वचन को ध्यान रखें और अपने मिनिस्ट्री में इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करेंगे। So if you have 2 talents, trade for 2 more. If you have 5 talents, trade more so that you can earn more and and can receive blessings from God. Because when you will go back to your hometown, when you will go for your vacation, try to trade the gift that God has given and come back with a new strength and with a new grace from God. हमेशा जोसेफ, डेविड, एस्तेर के समान आगे बढ़ते रहे, प्रभु के लिए कार्य करते रहे और परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहे। Always like Joseph,